بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اس با مقصد اور پاک مجلس میں 5-10 منٹ قرآن پاک کا درس دینے کا حکم ہوا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک ہی آیت تلاوت کی، جس میں قرآن پاک کی تعریف بھی کی گئی ہے، اس کا تعارف بھی بیان کیا گیا ہے اور اس کا مقصد نزول بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ اسراء کی آیت ہے، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ یہ قرآن جو ہے شفا اور رحمت کے طور پر نازل کیا گیا ہے، یا قرآن کے ذریعے سے اللہ پاک شفا اور رحمت بھیجتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن ظالموں کے لیے خسارے کے سوا قرآن پاک میں اور کچھ بھی نہیں۔ ایک طرف سے رحمت اور شفا، دوسری طرف سے خسارہ۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ یہی انسان جو خسارے میں پڑ سکتا ہے اور رحمت اور شفا کا مستحق بھی بن سکتا ہے۔ یہ قرآن پاک جو ہے کیا کیا نہ کیا گیا اس کو حصول اقتدار کے لیے بہت سے لوگوں نے جلسوں میں اس کی تلاوتیں کی، اور پھر اقتدار حاصل کرنے کے بعد قرآن پاک کی تعلیم کی دھجیاں بکھیر دی گئیں، اس کی مخالفتیں کی گئیں اونچے پیمانے پر۔ اور یہی قرآن پاک ہے جس کو کچھ لوگ پڑھتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس سے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن جو ہے اس سے وہ خسارے کی صورت جو ہے، جو یہ اعلان کرتا ہے کہ ظالموں کے لیے قرآن میں خسارے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، تو اس خسارے سے بچنے کے لیے، رحمت اور شفا کا مستحق بننے کے لیے انسان کو سوچنا چاہے، غور کرنا چاہے، پھر ایسا راستہ اختیار کرنا چاہے جس سے سچ مچ انسان شفا اور رحمت کا مستحق بنے اور بہت بڑے خسارے سے، دنیا اور آخرت کے خسارے سے محفوظ رہے۔ بڑے بڑے دانشوروں نے اس سلسلے میں ہدایتیں دی ہیں۔ کسی نے کہا ہے قرآن رہے پیش نظر، یہ ہے شریعت۔ اگر قرآن پیش نظر رکھ کر آپ زندگی گزارو گے، عمل کرو گے، اپنے کاموں میں، اپنی زندگی کے پیشے میں، اپنے کام میں قرآن پاک کی تعلیم کو شامل کرو گے، داخل کرو گے اور اس کے مطابق زندگی گزارو گے، تو جاننا چاہے تم شریعت کے پابند ہو، تم شریعت پر چل رہے ہو۔ اللہ رہے پیش نظر، یہ ہے طریقت۔ اسی شریعت پر چلتے چلتے اگر ہر وقت آپ کو یہ خیال رہے کہ میں اللہ کی نظر میں ہوں اور میری نظر میں اللہ ہے، پھر وہ اس سے آگے ایک قدم ہے، وہ ہے طریقت۔ جو طریقت کے راستے پر چلنے والا آدمی ہوگا وہ شریعت سے بالاتر ہے، وہاں سے اونچا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں
सारी उम्र ये सुनते और सुनाते हुए गुजर गई। ये मदरसे हमने कायम किए, हमने नहीं किए, दुनिया ने किए, लोगों ने किए, इस तवक्का के साथ कि यहाँ से जो पौध निकलेगी, यहाँ से जो इंसान निकलेंगे वो इंसानियत के लिए एक नमूना होंगे, इंसानियत के लिए रहमत साबित होंगे। लेकिन बहुत कम ऐसी मिसालें सुनने में आती हैं कि कहीं किसी ने ऐसी मिसाल कायम कर दी कि मैं कुरान पर यकीन रखने वाला आदमी हूँ, मैं अल्लाह पर ईमान लाने वाला आदमी हूँ और मैंने नाजायज़ कोई पैसा नहीं खाया, कि उसने कहीं ड्यूटी में तसाहुल नहीं किया इस वजह से कि वो खुदा से डरता था। ऐसी मिसालें बहुत कम पाई जाती हैं दुनिया में। इससे साबित होता है कि हम पढ़ते हैं कुरान, सुनते हैं कुरान, हिफ्ज़ भी करते हैं और इसको अमली ज़िंदगी से दूर भी रखते। जहाँ अमली ज़िंदगी, जहाँ इसकी ज़रूरत थी वहाँ इसको दूर रखते। तो जहाँ अमली ज़िंदगी में ये रहनुमा न हो तो वहाँ कुरान जो है शफा और रहमत की बजाय खसारा साबित हो सकता है। जब अमली ज़िंदगी से हम इसको छोड़ देंगे तो अल्लाह पाक के पास हम क्या जवाब देंगे। तो हम तवक्का करते हैं कि उसातिज़ा किराम, तलबा और तलबा के वालिदैन, ये तीनों तबके जो हैं इस मकसद को पेश नज़र रखें जिस मकसद के तहत ये मदरसे कायम किए गए हैं। ये बच्चे जो हैं ये अल्लाह की एक रहमत है, ये कांटे नहीं, ये फूल हैं। लेकिन उनको फूल से क्या होता है, पहले फूल होता है, उसके बाद उसमें बीज पैदा होता है और बीज के बाद फल पैदा होता है। हम तवक्का करते हैं कि ये फूल जो हैं ये फल दें, ये कभी फलदार साबित हो जाएं और ये माहौल को, समाज को, आवाम को, लोगों को, मुल्क को फल दे दें, अच्छा फल दे दें। यही चीज़ है। और ये अच्छा फल क्या है, काबिल तारीफ़ किरदार। वो किसी ने कहा है जिस कदर दिल फरेब चेहरा है काश किरदार भी हसीन होता। चेहरे अगर दिल फरेब हैं, खुश शक्ल हैं, लेकिन किरदार भी अगर अच्छे होते तो फिर सोने पर सुहागा होता। फिर क्या कमी थी। लेकिन कोशिश की जानी चाहिए यही कि ये जो मदरसे हैं ये नमूने के मदरसे बने। और बच्चों के, बहरहाल बच्चे तो वालिदैन के होते हैं, उस्तादों के पास आते हैं इसलिए कि उस्ताद उन्हें बेहतरीन बनाएं, इल्म के ज़ेवर से आरास्ता करें और अदब सिखाएं, हुनर सिखाएं, अक़ल सिखाएं, तहज़ीब सिखाएं और अच्छा कैरेक्टर बनाना सिखाएं। वालिदैन की ज़िम्मेदारी इससे भी ज़्यादा है, लेकिन तजर्बा में ये बात आई है कि वालिदैन आम तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में कोताही करते हैं। वालिदैन की ज़िम्मेदारी इतनी ही नहीं है कि वो बच्चे की फ़ीस अदा करें और बच्चे को बस्ता देकर स्कूल भेजें, इतनी ज़िम्मेदारी नहीं है वालिदैन की। वालिदैन की इतनी भी ज़िम्मेदारी है कि वो ये देख लें कि मेरा बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, वहाँ से क्या सीख रहा है, क्या इसमें कोई चेंज भी आ रही है कि नहीं, इसमें कोई बेहतरी भी पैदा हो रही है कि नहीं, ये भी देखना है उसने ये भी देखना है वालिदैन ने कि मेरे बच्चे में बुरी आदतें तो नहीं पैदा हो रही हैं। क्योंकि बच्चा जो है वालिदैन के पास ज़्यादा अरसा रहता है। उस्ताद के पास तो वो 24 घंटों में सिर्फ 1/4 पीरियड में रहता है, 5-6 घंटों में स्कूल में वो रहता है और सारे तवक्का करते हैं कि जो कुछ भी करना है वो इस उस्ताद ने करना है। भाई उस्ताद ने करना है 6 घंटे में जितना वो कर सकेगा, बाकी 18 घंटे में तो बच्चा समाज के पास होता है, घर वालों के पास होता है। वहाँ अगर उसके घर वाले खुद बुरी आदतों में मुब्तला हों तो उसका असर नहीं पड़ेगा उसके बच्चे पर, उस्ताद कितना कुछ करेगा। तो उस्ताद को भी ये जानना चाहिए कि मुझ में भी कैरेक्टर होना चाहिए, मुझ में भी कोई सलाहियत होनी चाहिए।
मैं बासलाहियत उस्ताद साबित होना चाहूँ। और फिर वालिदैन की ज़िम्मेदारी जो है बच्चे को सब ज़रूरियात देने के बाद इस पर नज़र रखनी है कि ये बन रहा है कि बिगड़ रहा है, ये अच्छा बन रहा है कि बिगड़ रहा है, वो भी देखना है उसने। और वालिदैन को ये भी देखना है कि अगर कुछ बुरी आदतें उनमें भी हैं, उनको यह नहीं समझना चाहे कि मुझ में होगी बुरी आदतें फिर मेरे बच्चे में नहीं होगी, क्योंकि ये स्कूल जाता है वहाँ उस्ताद उसको कहता होगा तो सच बोला कर, तो किसी की चोरी न कर, तो किसी को गाली मत दे, लेकिन घर में वो गालियाँ देते होंगे सारी इधर उधर वालों को, वो चोरियाँ भी करते होंगे, वो बेहुदा बातें भी करते होंगे, क्या बच्चे को इसका असर नहीं पड़ेगा? ये तमाम चीज़ें जो हैं वालिदैन को भी सोचना है, उस्तादों को भी सोचना है, फिर जाकर ये बच्चे जो हैं वो फ्रूट देंगे, वो फल देंगे जिसकी हमें तवक्को और ज़रूरत है। अगर सचमुच कुछ स्कूल अच्छे बच्चे पैदा कर दें, अच्छे डॉक्टर आएँ, अच्छे पटवारी बने, अच्छे पुलिसमैन बने, अच्छे एसपी बने, अच्छे डीसी बने, जो लोगों को राहत पहुंचाएं, तो फिर यही तो मकसद था इन मदरसों और इन स्कूलों का। तो बहरहाल इस मुख्तसर टाइम में मैंने इस कुरान पाक की रोशनी में जो मैंने तिलावत की थी, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान के ज़रिए से मैं शिफा और रहमत नाजिल करता हूँ। वमा यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा, लेकिन ज़ालिमों को खसारे के सिवा कुरान पाक में और कुछ नहीं मिलेगा। और हक़ भी ये है कि जिन लोगों ने भी कुरान को छोड़ दिया, जिन लोगों ने कुरान की तालीम के साथ मुकाबला आराई की, नहीं माना, हुज्जतें की, वो उनने मुँह की खाई, वो तबाह बर्बाद हो गए, वो खसारे में पड़ गए। तो जिन लोगों ने लब्बैक कहा, इसको कबूल किया, इस पर अमल किया, इसको सामने रखा, इस पर चले, वो शरीयत के मुताबिक चलते रहेंगे और उनसे लोगों को भी फल मिलेगा और ख़ुद उनको भी इससे फ़ायदा होगा। तो बहरहाल ये आप समझदार हो, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं बड़े समझदार लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ। मैं खुद समझदार नहीं हूँ, बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बहुत कुछ जानने वाला नहीं हूँ, समझदार लोगों में खड़ा होने का मुझे मौका मिला। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। और मैंने एक तवज्जो सी दी आपको कुरान की तरफ, अल्लाह की तरफ। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना।